and welcome to We Women Want. This is our weekly show where we curate conversations around women-related issues. We discuss issues relating to laws that help women, medical issues pertaining to women, from breast cancer to IVF. We also bring up issues of domestic violence, domestic abuse. We celebrate the wins. We talk about work-life balance, because women, they can juggle anything and everything, and we do. So today on the show, we have a panel of women councillors. Councillors are your elected representatives that actually take care of your immediate neighborhood, your civic issues. They make sure the home where you're staying in, the area around it, is safe, secure, and also socially taken care of. So joining me on the show today is Shikha Rai. She's a senior leader from the BJP. She's the two-time elected councillor from Greater Kailash area in New Delhi. She's also been the vice president of Delhi Pradesh BJP and a former standing committee chairman. We have Yogita Singh. She's a councillor from Kalkaji. She's also the president of the BJP Mahila Morcha. And we have Hema Bora. She's a councillor, first-time councillor from the Aam Aadmi Party. She's from the Jaitpur district. She's earlier in Delhi. Earlier on, she was a fashion designer. So she's a relative new entrant. Yogita is also a first time, but she's been a hardcore BJP member for a while now. But Shikha ji, I'd like to begin with you. First of all, can you explain to our viewers what exactly does the work of a councillor involve? I think people of Delhi especially need to understand the difference between what the councillor does and what an MLA does and what an MP does. Yeah. So, because earlier, prior to 2012, most of the activities were with MCT, like the sewage, the water and all, but now there is a Jal board for that. So that there are now different kind of works which MCD does. Basically, we are there for the entire sanitation of the area, all the lights that are there in the MCD roads, and all the parks are maintained by us. This is just the basic, I'm telling you, what the works we have. Apart from this, the well-being of the area, I think, for the general well-being of the people, it includes many things which are directly taken care of by the corporator. So it is the basic day-to-day needs and the overall well-being which I think a corporator does. And I should definitely tell here that it is only the councillor who is in direct contact with the people, because an MLA has his own area of work and limited, and you know, I don't think that he is approachable that kind, because he has different kind of works. So basically, when a person who is in any need would think of his need, he would come to the corporator, telephone the corporator that this is it. Then we make him understand, oh no, this is not our job, this is this job. But we try to, you know, reach out even to that kind of his concern, which we do not have under our jurisdiction. Even then, we have to take care of that. So you are the interface. Yes, I think the first connectivity with the of the people with the government. We are just the first, connectivity. So definitely we are there. He sees us for all the governments. So how do you manage it, with your family? It's a 24-hour job. और आज तो RW people, WhatsApp chats, मतलब आपको तो कुछ minute भी नहीं मिलता है to yourself. Definitely, everything has its own advantages and disadvantages. If social media has its advantage to some extent, it does have disadvantage. But I think, yes, for connectivity, it's a very good medium. So these days, we cannot say that we have a landline telephone and then we are not available. The person is not here on the landline. So you're carrying your mobile. So always they think that you're always and every time, even 24 hours, late night, you're available for them. So one thing is there that yes, this has helped the people to connect with the elected representative. Yes, our jobs, I think, have really, become tough, and this thing, just because connectivity is more, but I think that's our job. Even if connectivity or no connectivity, that our job is that people have elected us for, so we definitely need to do those jobs. Yes, it becomes difficult for us to balance the house and the office, the area sometimes, and then for that matter, I think it is only your family who is sacrificed for the public, for the work. योगिता जी, आपका थोड़ा सा लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ. मैं तो बीजेपी की कार्यकर्ता 2006 से हूँ. पार्टी की निरंतर पदाधिकारी रही. मैंने संगठन में मंडल से लेके जिले में, फिर नेशनल लेवल पे भी काम किया. उसके बाद मैं दिल्ली बीजेपी की मेन टीम की वाइस प्रेसिडेंट बनी. अभी मैं दिल्ली महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हूँ.
और उसके साथ साथ मैं नेशनल हैंडलूम बोर्ड की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रही। एज ए प्रोफेशन मैंने फैशन डिज़ाइनिंग ही किया हुआ था। तो बट समाज में काम करने का एक अपना आनंद है। और जैसा शिखा जी ने कहा कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी, क्योंकि दिल्ली में अगर हम किसी छोटे मतलब अदर स्टेट में होते जहाँ पंचायत है, वहाँ उनकी कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है। जो भी सबसे छोटा चुनाव होगा, आम आदमी उसी के साथ कनेक्ट करता है, क्योंकि उसका एरिया लिमिटेड होता है। लोग बड़े व्यक्ति के पास बाद में जाते हैं, जो सबसे पहला जनप्रतिनिधि होगा उसके पास आम जनता को हमेशा से कनेक्शन जुड़ा रहता है। तो संगठन में काम करना एक अलग आनंद देता है, बट जनप्रतिनिधि का एक अपना ऑरा है और वो लोगों को आप सेटिस्फाई कर पाते हो। क्योंकि एज अ संगठन में जब आप काम करते हो तो आपने उस काम को करने का तरीका ढूंढना होता है। कोई आपके पास आया, उसको कोई प्रॉब्लम है, चाहे कोई महिला को है या आपके एरिया को कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप किन लोगों के पास जाते हो? ऑटोमेटिकली जनप्रतिनिधि के पास ही जाते हो। So here you are directly talking to them. Now. And how about your family and how does it work out? मेरा एक ही बेटा है, वो अपना काम कर रहा है अभी। तो वो फैमिली का शुरू में तो शुरू में बहुत, हाँ डेफिनेटली। देखो क्या है, अगर आप अच्छे से घर मैनेज नहीं कर सकते तो आप समाज के लिए काम भी नहीं कर पाओगे। तो घर को मैनेज करना, फिर समाज को मैनेज करते करते ये बात सही है कि अल्टीमेटली सेक्रीफाइस कौन करता है। आपके पास 24 घंटे हैं, आपको 8 घंटे 6 घंटे सोना है, बाकी समय में फैमिली और बाकी के काम, तो अल्टीमेटली सफ़र तो आपकी फैमिली ही कर रही होती है। टाइम किसका कट होता है? अगर आप अपनी डे टू डे जर्नी को भी देखो कि आप सबसे कम, भाई आपने नहाना है, खाना खाना है, तो आप क्या करते हो? भगवान पूजा करने के लिए आप पूजा का टाइम शॉर्ट कर देते हो। जो चीज़ें आपकी सबसे ज़्यादा प्रिय होती हैं वो ही कम मतलब छूटती हैं। उसी तरह राजनीति में भी आपको 24/7, और आपको अपने फंक्शंस और फैमिली फंक्शन हो और पार्टी के किसी कार्यकर्ता का हो या पब्लिक के किसी, तो आपकी प्रायोरिटी बदल जाती है। पहले आप उसको अटेंड करने जाते हो ताकि वो खुश रहे। Family is last. So Hima, how are you finding the difference? क्योंकि आप ये बिल्कुल फैशन डिज़ाइनर में थी, प्रोफेशनल थी, now you are in politics and बिल्कुल ही as they are saying direct connect with the people, सबके प्रॉब्लम सुनने पड़ते हैं 24 hours. जी, लाइफ बहुत चेंज हो चुकी है मेरी। पहले मैं हाउस वाइफ थी, पहले घर संभालना, बच्चा संभालना। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर मैंने फैशन डिज़ाइन का कोर्स किया और अपना बुटीक खोला। उसके बाद मेरी लाइफ सेट थी, मतलब अपना घर और बुटीक ये संभालना। फिर एकदम लेडीज सीट हो गई। देखिए, सरकार ने बहुत अच्छा किया लेडीज़ों के लिए कि हमारे देश में लेडीज़ों को आगे आने का मौका मिल रहा है राजनीति में। तो शायद मेरे नसीब में था, तो लेडीज सीट हुई। मैं फिर 1 साल से मैं राजनीति में एक्टिव। जब लास्ट इलेक्शन कैंसिल हुए थे, उसी टाइम से मैं कंटिन्यू 1 साल से अपने क्षेत्र में काम कर रही हूँ। So काम आपका रेगुलर दिन कैसे होता है, थोड़ा सा बताएंगे हमें? रेगुलर जी यही है कि सुबह उठ के ऑफिस पे जाते हैं। हमने 2 ऑफिस खोले हुए हैं अपने। ऑफिस पे जाते हैं, वहाँ पे आधार कार्ड, लेबर कार्ड, पेंशन, ये सारे काम हम कर रहे हैं। तो वहाँ लोगों से होता है, लेडीज से आती है, मुझसे लेडीज से काफ़ी कनेक्टेड है। जो 1 साल में उनके साथ रही हूँ, तो मेरे साथ अच्छी तरह से तो लेडीज की अलग इश्यूज होंगी जो आदमी लोग से बात नहीं कर सकते हैं, इस तरह का इश्यूज है? बहुत इश्यूज है उनके, कि साफ सफाई को लेके, क्योंकि आदमी तो सुबह निकल जाते हैं, वो अपना सुबह जाते रात को आते, उन्हें नहीं पता नाली भरी हुई है या कूड़ा नहीं उठ रहा है। तो ये लेडीज़ों के है, लाइटें ठीक नहीं हो रही है, आदमी इतना ध्यान नहीं देते। उनको क्या है कि लाके दे देते हैं, लेडीज़ बना लेती है। लेकिन जो लेडीज़ रहती है, पूरे दिन घर में रहती है, बाहर भी बैठती है, नालियाँ भरी हुई है, कूड़ा नहीं उठ रहा, तो वो सारी प्रॉब्लम मुझे बताती हैं वो आके। और भी उनकी बहुत सी दिक्कत है कि छोटे मोटे रोजगार का दिक्कत है वहाँ पे। तो हम यही चाह रहे हैं कि आगे किसी एनजीओ के थ्रू हम मिलके उनके लिए कुछ करा जाए, सिलाई सेंटर खोले जाए। ये सब प्रॉब्लम है वहाँ पे। इनफैक्ट ये जो लेडीज अलग से कर सकती है ना, बीइंग अ वुमन, आप थोड़ा सा ज़्यादा यू कैन ब्रिंग टू द टेबल देन अ मैन, बिकॉज लॉट ऑफ इश्यूज ओनली women will understand and women also feel free आपसे बात करने के लिए। Yes, definitely, definitely. Reservation is given a very, this for women empowerment. If you
टॉक ऑफ एम्पावरमेंट इन द रियल सेंस, क्योंकि एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ रोज़गार और सिर्फ नहीं है, यानी जहाँ औरतें अपनी आवाज़ रख सकें, मुझे लगता है एम्पावरमेंट वहीं से शुरू होती है कि अपनी बात कहना शुरू कर सके, कोई उनको प्लेटफॉर्म मिले। तो उस नाते विमेन जहाँ भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ की लोकल महिलाओं को बहुत अच्छा एक मौका मिलता है कि वो अपनी बात को कहीं रख सकें। उसमें उनके बड़े पर्सनल इश्यूज भी कई बार होते हैं, नॉट ओनली दैट दे आर कनेक्टेड विद द MCD और वो कनेक्टिविटी हमसे ज़्यादा उनकी वाकई रहती है। हम जब अपनी वोट अपील कर रहे होते हैं ड्यूरिंग इलेक्शंस, इवन कैंपेन करते हैं, तो वी कैन इजीली गो इवन टू देयर बेडरूम्स, बिकॉज वो विमेन घर पे होती हैं, औरतें हैं, तो हम वहां जा करके भी उनसे बात कर सकते हैं। किचन में चले जाएं, वो चाय बाहर बना आके लें, बात नहीं करती हैं, वो जनरली बाहर आकर के नहीं करती हैं, घूंघट में होती हैं या पर्दा करती हैं, तो हम अंदर जा करके भी उनसे बात करके अपील करते हैं, तो उनको वाकई वो लगता है कि हाँ नहीं, इनसे मैं बात कर सकती हूँ, कल को कोई प्रॉब्लम आई तो मैं इनके पास जा करके अपनी बात कह सकती हूँ, और वह कहती भी हैं। और आप देखिए एक बड़ा फैक्टर ये रहता है, हम रिसेंटली बहुत मोदी जी की गवर्नमेंट ने अवेयरनेस करी है अबाउट सैनिटरी नैपकिन्स, अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। अब उस हाइजीन को मुझे नहीं लगता कि कोई पुरुष पार्षद होंगे जो कॉरपोरेटर्स हैं, वो उतने अच्छे से उनको ना उस विषय पे उनसे बात कर सकते हैं, ना उसके लिए उतना काम कर सकते होंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारी हिचेस हमारे सोसाइटी में हैं। तो हम लोग बहुत उस पे काम करते हैं। पिछले 2-3 सालों में जब से कोरोना का हुआ था, तो लगातार सैनिटरी नैपकिन्स उनको देना, उनको आदत में डालना, उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर लेक्चर्स देना, दिलवाना। सो दीज आर काइंड ऑफ, एज आई टोल्ड यू, फॉर द जनरल वेल-बीइंग ऑफ द एरिया. Apart from the basic MCD issues, there are also issues which are for the well-being of the society होते हैं। तो उसमें women का रोल मुझे लगता है कि comparatively बहुत बेहतर तरीके से होता है। And one thing, प्रिया जी, you also must know being a woman, कि हम लोग सिंसियर होते हैं काम के प्रति बहुत ज़्यादा। हम लोगों को माइक्रो जो मैनेजमेंट है, डिटेलिंग में, घर में भी जब काम करते हैं तो ये नहीं रहता है कि उसको आधा पचाधा करके, सब्जी बना रहे हैं तो कंप्लीट करके ढक के उसको ऐसे सिस्टम में डाल के रख के आएंगे कि बच्चा आएगा तो अपना उठा करके खा लेगा, नहीं लाइक दैट। वेरी वेल सेड। सो दैट वे इज ओनली वी वर्क इन द एरिया। उसमें ये नहीं है कि कोई काम शुरू कर लिया तो हो गया भाई कि नहीं हो गया, उसको एक आदत बनी रहती है कि देखने की कि वो एंड तक कंप्लीटली जिस चीज़ के लिए वो होना था वो हो गया। तो ये मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक विमेन जो है फील्ड में बेहतर तरीके से कर पाती है। In fact, you know, we had women CEOs और उन्होंने कहा था कि we prefer women because women को multitask करना आता है, वो बच्चे भी बड़ा कर सकती हैं ऑफिस में, and they are the ones जो घर पे they will leave office at 5, उनको 7 बजे तक बैठने की कोई इच्छा नहीं है। I think biologically ये है उनमें ट्रेट अलग से कि वो मल्टीटास्किंग कर सकें, क्योंकि घर में भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बाहर भी संभाल। देखो, महिलाएं पुराने टाइम से ही, कोई आज नई पीढ़ी के साथ नहीं, वो तो पुराने टाइम से ही चल रहा है। कई भाई वो खेत खलियान में भी जाती थी, ठीक है, वो बच्चों को भी संभालती थी। अनएजुकेटेड महिला भी मल्टीटास्किंग होती है, उसकी मैनेजमेंट का गुण उसमें सबसे ज़्यादा होता है, वो बाय बर्थ ही होता है। मुझे लगता है बीइंग अ लेडी, जो लेडीज़ एक्चुअली एक्टिव है, देखिए इन्होंने कहा कि मैं 1 साल पहले, तो इनको समस्याएं समझ आने लग गई ये एक्टिवली। जहाँ पे मेल राजनीति कर रहे हैं फीमेल की जगह पे, वहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ दिक्कतें उनको समझने में आती हैं। बट जहाँ पे महिलाएं निकल के राजनीति करने के लिए बाहर आती हैं, उसका रिजल्ट एज अ पब्लिक अगर आप देखोगे, वो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा लोग सेटिस्फाई रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमने इनको काम कहा है तो ये किसी किसी तरीके से डिलीवर करेगी, और वो 100% करती हैं। और नैतिकता के आधार पे भी, मतलब जैसा शिखा जी ने कहा कि खाली ये नहीं है कि हमारा कॉरपोरेशन का काम है, लोगों की लड़ाई झगड़ा होगा, वो भी मुद्दा हमारे पास आएगा, तो हम उसको समझ के उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश। आपने कहा पंचायत नहीं है, पर मैं देख रही हूँ आई एम ऑन RWA ग्रुप। RWA ग्रुप इज द न्यू पंचायत। क्या लड़ाइयाँ होती हैं कि योर डॉग हैज कम टू माय हाउस, माय गाड़ीज, एंड फिर वो रिजॉल्व तो आप ही लोगों के ऊपर आता है। वो छोटे छोटे इश्यूज के लिए भी, ऊपर नीचे की आपस की बिल्डिंग का इशू है, दो भाइयों की आपस की लड़ाई है, हस्बैंड वाइफ का वो है, तो वो सब भी वो लेके आते हैं, बात पंचायत इज नाउ द व्हाट्सएप इज द न्यू पंचायत। जो लेडीज हमसे कह सकती है वो किसी और से नहीं कह सकती। मेरे एरिया में ये प्रॉब्लम थी कि ऑटो वाले
बच्चों की छुट्टी होती थी, ऑटो वाले लाउड म्यूजिक चलाते थे, मतलब अश्लील गाने चलाते थे, तो लड़कियों का बैठना मुश्किल हो जाता था उसमें। तो वो उनकी माएँ आई मेरे पास, बच्चे आए मेरे पास, जो जेंट्स से नहीं कह सकते। उन्होंने आके मुझसे कहा कि हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है आते जाते वक्त। हमने फिर उस पर कंट्रोल किया है। तो जो बात हमसे कह सकती है वो जेंट्स से नहीं कह सकती, हमसे अच्छी तरह से कनेक्ट कर सकती है। कोई भी उनके घर में भी कोई प्रॉब्लम है वो आके डायरेक्ट कहते हैं हमसे। तो मतलब ये बेनिफिट है लेडीज़ काउंसलर होने का। So being a woman, I think you get a more sensitive governance pattern model on the table. We're going to keep the conversation going, but after a quick break. Hello and welcome back to We Women Want. Today we are in conversation with the panel of women councillors. We're talking about the governance model and how being a woman you get to have a more sensitive, a more efficient also I would say governance model in place. So Shikha ji, like we were saying, there are issues जैसे कि Hema also said कि women feel more free coming to you and talking to you. आपने भी 2-3 examples दिए थे. Is there any disadvantage of being a woman? कुछ जहाँ पे Well, I have personally not faced any disadvantage of being a woman. मैं एक lawyer हूँ by profession. अच्छा, I didn't know that. Yeah. So when I joined the profession, not many women, because that was some 30 years back, 32 years back. So not very women. Today we see lot many girls in this field. But what I'm trying to say is that in every field where you enter, if you say so that women get benefits of being a woman, वो तो नहीं होता है. But personally मुझे कोई disadvantage नहीं हुआ. But yes, sometimes it so happens when suppose you are in the party. I'm not saying that my party is the first party who's given 33% reservation within the party for the entire Sangathan post, and while giving tickets also they do so. But what happens is generally, not in my case particularly, I have not won this, but no, this is non-partisan yeah, talk. no, what I'm saying is कि ये होता ये है कि suppose एक constituency है, उसमें पुरुष भी काम कर रहा है, महिला भी काम कर रही है, right. और and in the end टिकट देने की बात आती है, so who's to contest? Generally मुझे लगता है कि एक माइंड में आता है जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, बिकॉज वहाँ पर भी मोस्टली मेन होते हैं, तो वो आ जाता है कि अच्छा ये नहीं ये जो एमएलए का इलेक्शन है बड़ा टफ होता है, इसको लड़ने के लिए बड़ा एक अलग तरह का आपका माइंडसेट चाहिए होता है, तो पुरुष के जो है वो बेहतर कर सकते हैं. ये माइंडसेट से थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में इन द एंड मुझे लगता है कि एक ये कहीं फैक्टर वो हो जाता है, फॉर विच रिजर्वेशन was the step which government took, and I think in future also all other जो elections हैं उसमें भी ये होगा, तो definitely आप देखेंगे कि ये फ़र्क पड़ता है. बाकी आप इतना कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये मानती हूँ कि कोई ये कहे जी पुरुष शाम को बैठ सकते हैं, किसी के साथ भी मिलजुल सकते हैं, तो हम नहीं ऐसा कर सकते. पर मुझे पर्सनली ऐसा कभी महसूस हुआ नहीं है कि हम वो नहीं कर सकते जो पुरुष करते आए हैं. तो मैं मानती नहीं हूँ इसको पर्सनली कि भाई ये कोई, बल्कि मुझे तो लगता है महिला होना बड़ा एडवांटेजेस रहता है. बहुत सारी जगह में हमें एक रिस्पेक्ट की निगाह से अलग से देखा जाता है. हमारे डिसीजंस को, जैसे हम घर में भी, ये कहने की बात है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पर घर में भी आप देखिए डिसीजंस जनरली जो हैं वो लेडीज़ के चलते हैं इन एवरी डिसीजन, स्पेशली इन इंडिया. What I have seen, हमारी दादी, हमारी नानी, हमारे मदर्स, सबने एक अच्छा रोल उसमें प्ले करते रहे हैं. हो सकता है कि उसका नंबर समाज में कम हो, तो वो जो बाहर के भी सब होते हैं उनको भी लगता है कि नहीं ये सिंसेरिटी से ये उससे इनका डिसीजन में बड़ा वो होगा. तो मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि पर्सनली ये कभी ऐसा आया नहीं कि बहुत डिसएडवांटेज हो सकती है. हो सकता है रिमोट एरियाज़ में, विलेजेस में, गाँवों में ये स्थिति ज़रूर आती हो महिलाओं के साथ कि वहाँ पे उनको बीइंग अ वुमन. बट डिड यू फाइंड एनी डिसएडवांटेज? नहीं, मुझे भी नहीं लगता कि महिला होने का कोई डिसएडवांटेज है. डिफिकल्टी कह दो, चलो. डिफिकल्टी देखो, हाँ, डिफिकल्टी कैसे होती है, सेम थिंग कि अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो महिलाएं कभी नरिश ही नहीं हो पाती. एक बार रिजर्वेशन का बेनिफिट जो है वो परिवार ले सकता है. परिवार मतलब आप अपनी वाइफ को टिकट देंगे, आपकी मदर आएगी या बेटी आएगी, बट आप इन द लॉन्ग रन देखो वो 5 साल में नरिश हो जाती है. अगर रिजर्वेशन नहीं होता, अगर पंचायत में रिजर्वेशन नहीं होता, तो आज पंचायत की महिला संसद में नहीं पहुंचती, क्योंकि उसको कोई मौका ही नहीं देता. तो पहला प्लेटफॉर्म
जो है वो रिजर्वेशन होना ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, उसको मौका मिल जाता है। जैसा शिखा जी ने कहा कि जब महिला वर्सेस पुरुष आता है तो वो उसके कंपैरिजन में ये देखते हैं कि ये रात को काम नहीं, हालांकि वो ज़्यादा अच्छे से डिलीवर कर सकती है, बट उसके कंपैरिजन में उसको पीछे रख दिया जाता है। बट अगर उसको वो मौका दे दिया जाए तो वो अच्छा रिजल्ट देती है, अच्छा काम करके दिखाती है। इसीलिए पूरे देश में जब देखने में आया, देखो पंचायत में रिजर्वेशन सबसे पहले हुआ 50% का, वो महिलाएं कॉरपोरेशन में आ गई। आज कॉरपोरेशन में देखो कितनी पत्नियां और कितनी कार्यकर्ता चुनाव लड़ रही, किसी भी पार्टी की हो, वो बेहतर मतलब नरिश होके आ गई। उसी को अगर आप अगले 5 साल में देखोगे तो वो 50% से ज़्यादा 70% ऐसी महिलाएं आ जाएंगी जो पार्टी का किसी ना किसी रूप में काम कर रही होंगी। मैं हूँ, शिखा जी हैं, हम पार्टी के वर्कर थे और संगठन का काम करते हुए नरिश होके चुनाव लड़े। करेक्ट। तो ऐसे ही महिलाओं को रिजर्वेशन एक माध्यम बन जाता है। बट इन टर्म्स ऑफ डे टू डे Day- फंक्शनिंग, हाँ। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम जहाँ पे लाइक यू कुड से लाइक शी सेड रात नहीं, यू कांट सिट विद पीपल, नो थोड़ा सा नो There- इन मैंने कहा ये वो सोचते हैं। कैपिटल, वो सोचते हैं सारी। हाँ, नहीं, हम कैपिटल में रहते हैं। इन दिल्ली देयर इज no problem. नो प्रॉब्लम। बच्चियाँ जो पढ़ती भी हैं, कॉलेजेस में जाती हैं, वो लोग पार्टी करने के लिए, अपने फंक्शंस करने के लिए, बच्चे बाहर जाती हैं, बच्चियाँ भी। जैसा देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं पुरुष समाज को ही समझाना चाहिए कि उनको तय करना है How to कि be. हाउ टू बिहेव। महिलाएं ऑलरेडी शिक्षित हैं और वो ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं और उनका कोई इशू नहीं है। आप कहीं भी किसी महिला को ये कहते हुए नहीं सुनेंगे, वो तो ये कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाओ भाई, आगे। Correct. तो वो इशू दूसरी साइड है, वहाँ दिक्कत ज्यादा हो सकती है। वो रात वाला जो इशू है प्रिया जी, उसमें फिर जो महिला आपसे बात करने आ रही है वो भी तो रात को उठ के आपके आकर आपसे बात कर सकती है ना। Right. वो पुरुष के पास नहीं जा सकती अगर किसी को इशू मैं है तो। आपको एक Very good point. मैं That is आपको true. एक हाँ, एक मिनट एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं कॉर्पोरेटर बनी, मुझे रात को 2 बजे किसी ने फ़ोन किया, मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि मैं जस्ट ये चेक कर रहा था कि आप फ़ोन उठाती हैं कि नहीं उठाती हैं। अरे so these are also so these kind of tests, yeah, you know, जो attitude होता है कि ये woman है तो ये तो बस घर जाएगी तो बस गृहस्थी संभालेगी, she won't be working। नहीं, ये लोगों की सोच है, सोच है ये लोगों की। लोग सोचते हैं कि हाँ भाई, अब जैसे लेडी सीट हुई, पहले मेरे हस्बैंड थे, हाँ। तो लोगों को लगा ठीक है ये पति के दम पे लड़ेगी, करेक्ट। लेकिन मेरे हस्बैंड ने इतना सपोर्ट किया कि तू खुद जा। और मेरी अपनी टीम इतनी मजबूत है कि 50 लेडीज आज मेरे साथ है, हाँ। हस्बैंड के बिना। Very मतलब good. इन्होंने सपोर्ट पूरा किया है, इनके उससे ही आई है, लेकिन आज वो मुझसे बात कर सकती हैं। तो जो लोग बोलते थे कि भाई हस्बैंड के दम पे चुनाव लड़ रही है, आज उनकी बोलती बंद है, आज वो चुप हो गए। नहीं तो ये कहा गया था मुझसे कि ये पार्षद नहीं है, इसका पति पार्षद है, लेकिन आज लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। पीछे लगता है बोहरा, हेमा बोहरा लगता है, लेकिन आज जानते हैं मैं काम करती हूँ, मैं हर उस जगह पे पहुँचती हूँ जहाँ पे भी मतलब अन्याय हो रहा है या काम नहीं हो पा रहा। लोगों को लगता है कि हाँ अब इसका पति आएगा, हर जगह सपोर्ट करते, साथ में रहते, ऐसा नहीं मुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन जहाँ इन्हें लगता है मुझे अकेले जाना है, मैं अकेले भी जाती हूँ। ये लोगों की सोच बन चुकी है कि लेडीज है कुछ नहीं कर सकती। मैंने 1 साल में करके दिखाया है। वेरी गुड। और ऑल्सो आप थोड़ा सा आयु एक तौर से मोबिलाइज कर रहे हैं विमेन को, एक क्या विमेन ग्रुप बना के, या विमेन की जो इश्यूज हैं जैसे कि आपने कहा थोड़ा वोकेशनल ट्रेनिंग उनको मिलनी चाहिए कुछ तरह का, सो इस तरह का आयु मोबिलाइजिंग हाउसवाइफ्स कुछ ऐसे होता है? हाँ जी, अभी तो मेरी शुरुआत है, देखिए जी हाँ, अभी शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे मेरे साथ काफ़ी लेडीज जुड़ चुकी है और सबको उम्मीद है कि मैं उनके लिए कुछ करूँगी। बस थोड़ा मेयर का इंतजार हो रहा है, मेयर बन जाए हमारा। एक्चुअली दिल्ली में एक वो भी प्रॉब्लम है ना, विच बिकॉज द पार्टी लीडर्स आर फाइटिंग, ऑल ऑफ यू ऑन द ग्राउंड आर स्टक। मैं आपको नहीं, बताती वो हूँ, ऐसा कोई लीडर्स फाइट वाली बात नहीं है। देयर आर सम टेक्निकल इश्यूज जिसको लेकर के ये चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में and let the सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। मैं बताती हूँ। आपने कहा ना, मैंने 1.5 साल पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कार्यालय खोला था। मैंने अपने एरिया में, क्योंकि हम प्लास्टिक मुक्त भारत की बात करते हैं, मैंने अपने एरिया के लिए 100 महिलाओं को आइडेंटिफाई किया थैले बनाने के लिए। उनको मैंने मशीनें अब एक NGO के माध्यम से दिलाई, और उन महिलाओं को सिर्फ थैले के लिए नहीं, क्योंकि मैंने उनका पहले टेस्ट लिया। देखो पुराने टाइम में लोगों को सिलाई करने का शौक है, तो वो घर पे ही कैसे एम्पावर हो जाएंगी।
भाई वो ब्लाउज सिल सकती हैं, पेटीकोट सिल सकती हैं और कपड़े, मतलब ठीक है वो बुटीक के लेवल का काम नहीं कर सकती पर छोटी सिलाई तो कर सकती हैं। Correct. मैंने अपने एरिया में 100 लोगों का ग्रुप बनाया और उनको काम दिया और वो लोग काम कर रही हैं। तो हम लोग ये काम तो करते ही हैं साथ साथ कि लोगों को एम्पावर, मतलब क्योंकि हम महिला हैं तो उनको और ज़्यादा कैसे मदद कर सकते हैं। कोविड के बाद एक नया क्या चेंज कह सकते हैं, महिलाएं और ज़्यादा एम्पावर, आत्मनिर्भर होना चाहती हैं। ये मैंने इस दौर के अंदर देखा क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी हो गया कि जॉब छूट गई है, क्या वो घर से क्या कर सकते हैं, तो इसका इंटरेस्ट भी महिलाओं में बढ़ा है। That's a good point, हाँ. But also another thing, Hima, like for instance, अगर campaigning में there are some kind of campaigning, some kind of words women will never use. You know, कभी-कभी men थोड़ा personal हो जाते हैं अपने campaign में. Women, I don't think ever would, or you think that it's a personal thing and not a man-woman thing. ये ऐसा तो मुझे देखने को नहीं मिला। नहीं मिला कुछ। हाँ नहीं, डेफिनेटली जो आप कह रहे हो कि वो बात वही आ जाती है, बीइंग अ वुमन। आप मर्यादा में रहना हम जानते हैं और इसलिए जब भी कभी कोई भाषण भी करते हैं या किसी के बारे में कुछ बोलना भी है तो विद इन सम पैरामीटर्स विच वी नो कि ये डिग्निटी के बियॉन्ड नहीं जाते तो हम वो यूज़ नहीं कर देते हैं, जबकि वो सामने से पुरुष कोई भी कैंडिडेट रहता है तो उससे आते हैं। वो उसको मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी पे कोई एलिगेशन की बात कर रही हूँ, बट जनरली ये डिफरेंस आप देखेंगे। किसी भी महिला को आप बोलते हुए, भाषण देते हुए, स्टेटमेंट देते हुए, कोई बात करते हुए आप देखेंगे और पुरुष को तो ये अंतर तो महसूस आप करते हैं। ये इसमें कोई मुझे लगता नहीं है कि आपने जो कहा कि ये कुछ गलत है, ज़रूर ऐसा सामने से आता है। Well, thank you so much, all of you, for coming. And we can see having women in any position of authority, governance, you do get that extra touch, which is more sensitive, more gentler, I would say, and definitely, I would say, more efficient as a general rule. But thank you so much for this conversation, and thank you for watching. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.